کیا کہا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اللہ کا ولی بنانا۔ والد کا انتقال ہو گیا، بایزید چھوٹے سے ہیں 4-5 سال کے، بہت غور سے سننا۔ تو اماں کو فکر ہوئی کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے، اب اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی کون ہے جو میرے بچے کو اچھی سی تربیت دے سکتا ہے۔ پتہ چلا ایک مدرسہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، وہاں کے ایک امام صاحب ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، وہ بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں۔ بوڑھی ماں اپنے اس بچے کو لے کر کے حضرت کے پاس لے آئی، کہیں گے حضرت جی یہ میرا یتیم نذرانہ ہے، یتیم لخت جگر ہے، حضرت جی اسے قبول فرما لیجئے اور اس کو اپنی تربیت میں رکھ دیجئے، اسے اللہ کا ولی بنا دیجئے۔ اور ایک اور فرمائش کر دی کہ جب تک کہ میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس وقت تک آپ اسے چھٹی مت دیجئے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی نا۔ تو حضرت کو رشک آیا، بھئی اس کی آواز اور نہیں بڑھ سکتی ہے تھوڑا، ابھی کانوں میں سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑی سی آواز میں نے گزارش کی تھی کہ بڑھا دیجئے، کیونکہ مجھے بہت طاقت لگانی پڑ رہی ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں اب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا تو کیا فرمایا کہ حضرت جب تک ایک گزارش کیا کہ جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے آپ اسے چھٹی مت دیجیے گا۔ جب اماں نے یہ خواہش ظاہر کی تو بایزید جو تھے انہوں نے سنا نہیں، استاد جی کو رشک آیا۔ ہاں آپ ٹھیک ماشاءاللہ۔ استاد جی کہنے لگے حضرت جی، استاد جی کہنے لگے اماں آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مجھ کو بھی آپ پر رشک آ رہا ہے، آپ دعا کرنا کہ میں آپ کی اس خواہش کے مطابق عمل کر سکوں۔ جب وہ اماں چلنے لگی تو چلتے چلتے کہا حضرت جی ایک دعا بھی میرے لیے کر دیجئے۔ کہا وہ دعا کیا ہے؟ کہا وہ دعا یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بوڑھی ہوں، بیمار بھی رہتی ہوں، شوہر کے انتقال کے بعد عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، حضرت ایک دعا یہ کر دیجئے کہ جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس وقت تک اللہ مجھے اپنے پاس نہ بلائے۔ اللہ اکبر، میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے دعا فرمائی، خوب روئے، ماں چلی آئی۔ اب یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ کتنے سال کا ہے بھائی؟ 5 سال کا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کا ہے۔ حضرت کی تربیت میں رہنے لگا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، جب 3 سال ہو گئے تو 3 سال کے بعد یہ بچہ آیا، کہنے لگا حضرت جی 3 سال ہو گئے، میں نے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگی، کبھی ضد نہیں کی، ان 3 سال میں مجھے ماں کی بہت یاد آئی ہے لیکن کبھی میں نے ضد نہیں کی۔ حضرت جی بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، حضرت جی 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، اماں کا چہرہ دیکھ کر واپس چلا آؤں گا۔ اب حضرت جی پریشان، اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ ایک طرف دل ہے، دوسری طرف وعدہ ہے، بچایا جائے تو کسے بچایا جائے، توڑا جائے تو کسے توڑا جائے۔ حضرت جی پریشان۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا بیٹے تمہیں چھٹی تو مل جائے گی لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت جی وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ پہلے تم مغرب کی نماز سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے اتنا سبق حفظ یاد کر کے سنا دو۔ اگر سبق یاد کر کے سنا دیا تو چھٹی، اور اگر طلوع غروب آفتاب ہو گیا، سورج چھپ گیا تو اگلے 3 سال تک تمہاری ساری چھٹیاں کینسل ہیں۔ کتنے صفحے تھے؟ 16 یا 17، مجھے تو اتنے یاد نہیں، میں نے کتاب میں پڑھ رکھا ہے لیکن تھے اتنے بہرحال۔ اب جب وہ بچہ گیا، 5 سال کا بچہ، حفظ یاد کرنا وہ بھی 15-16 صفحے، کوئی آسان معمولی بات ہے؟ ایک آیت تو یاد نہیں ہوتی جلدی، ایک لفظ تو جلدی یاد نہیں ہوتا قرآن کریم کا، اور وہ 16-17 صفحے۔ وہ بچہ آیا، وضو کیا، قرآن کھول کے دیکھا، رونے لگ گیا۔ دل میں آیا شاید استاد جی نہیں چاہتے کہ میں اپنی اماں سے ملاقات کروں، دل میں آیا جاؤں اماں کے پاس جاؤں، استاد کے پاس جاؤں، کچھ سبق کم کراؤں، لیکن دل میں آیا نہیں استاد کی بے ادبی ہو جائے گی، استاد جی پورے طور پر ناراض ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں کہا، واپس چلایا مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھی،
अपने नन्हे नन्हे हाथों को ऊपर उठाया, आंखों में आंसू भर के लाए, कहा अरे अल्लाह तू मालिक कायनात है, खालिक कायनात है, मालिक अर्ज़ो समावात है, रब्बुस समावात वल अर्द है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी माँ कहा करती थी तू सब कुछ कर सकता है, हर चीज पर तू कादिर है, जो चाहे कर सकता है। अल्लाह बूढ़ी माँ का चेहरा देखे हुए 3 साल हो गए, अम्मा का दीदार करने को दिल करता है। अल्लाह अल्लाह उस्ताद जी ने इतना सबक दे दिया है, मुझे नन्हे से जान की बस की बात नहीं है। अल्लाह मैं तो याद नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अम्मा कहा करती थी कि तू अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह मैं तो याद नहीं कर सकता, लेकिन तू चाहे तो मुझे याद हो सकता है। आय अल्लाह मेरी बूढ़ी माँ की बात की लाज रख लीजिए और मुझे सबक याद करा दीजिए। नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली और बच्चा मगरिब से पहले आ गया उस्ताद के पास। हजरत जी सबक याद हो गया है, सबक सुन लीजिए। हजरत जी परेशान, सोचा 1 सफ़ा याद हुआ होगा, 2 सफ़े याद हुए होंगे। अब जब सुनना शुरू किया सारे के सारे सुना दिए और बगैर जबर जेर पेश की गलती के सब सुना दिए। उस्ताद जी बड़ा परेशान, अब क्या करें, अब तो छुट्टी देनी ही थी, अब छुट्टी दे दी। ये बच्चा 3 साल के बाद शाम रात का वक्त हो चुका है, अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आया हुआ है। दरवाजा खटखटाया, अब्बा अम्मा मैं आपका बायजीद हूँ। अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला, दोबारा फिर खटखटाया, अम्मा खोलो दरवाजा, आपका बायजीद हूँ। अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ हाँ हमारी माएँ होती, 3 साल के बाद लाल आया है, 3 साल के बाद बेटा आया है, 3 साल के बाद मेरे चांद का टुकड़ा आया है। अम्मा आती, दरवाजा खोलती, दरवाजा खोलती, सीने से लगाती, चूमती चाटती प्यार करती। लेकिन बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अंदर से रोने लगी और कहने लगी तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया है जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा उस वक्त मेरे बायजीद के उस्ताद उसे छुट्टी नहीं देंगे। और हमारे बायजीद के उस्ताद मैंने सुना है झूठ नहीं बोला करते, वादा नहीं तोड़ा करते। जब बच्चे ने ये बात सुनी खड़ा रोता रहा, आंखें पोंछी, दिल में आया अम्मा मुलाकात करना नहीं चाहती, वापस हो लिया। आधी रात का वक्त हुआ, उस्ताद जी के कमरे में वापस मदरसे में तशरीफ लाया। उस्ताद जी ने देखा अरे बायजीद वापस आ गया। फरमाया हाँ हजरत जी क्या बात है, एक रात माँ के पास रुक लेता, बड़ी मोहब्बत से तू गया हुआ था, बड़ी मिन्नतें करके खुशामतें करते, बड़ी मेहनतें करके तूने छुट्टी हासिल की थी, एक रात रुक लेता अपनी माँ के पास। वो बायजीद कहने लगा हजरत जी अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है। उस्ताद जी ने कहा बेटा कहीं तुम अपनी माँ से नाराज तो नहीं हो। बायजीद यूं सर झुकाए हुआ था, यूं सर उठाया तो क्या देखा उस्ताद जी ने, आंखें बह रही हैं, सारे रुखसार गाल लाल हैं, आंसुओं की लड़ी बह रही है, खूब रोया है बायजीद। हाँ फरमाया हजरत जी आंखें बही बहुत हैं, दिल रोया बहुत है, तड़पा बहुत है, लेकिन मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ, अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ और अब्बा के फैसले पर भी और अल्लाह के अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ, मैं अपनी माँ से नाराज नहीं हूँ। फिर उस्ताद जी के करीब आया, कहा हजरत जी एक वादा आपने मेरी माँ से किया था, एक वादा आप मुझसे भी करें। हाँ हाँ कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ, कभी रोने भी लगूंगा, जिद भी करने लगूंगा, लेकिन हजरत जी जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊं आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा। हाय हाय हाय, जब माएँ ऐसी कुर्बानियां देती हैं तो बच्चे भी यूं ही हुआ करते हैं। फरमाया मैं उस वक्त तक आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा, चाहे जितना मैं रोऊं, जब तक मैं अल्लाह का वली ना बन जाऊं। हजरत जी रोने लग गए, सर पर हाथ रखा, बेटे को तरबियत में ले लिया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 17 साल गुजर गए। कितने साल? अरे बोलो कितने साल गुजर गए? 17 साल गुजर गए। 17 साल जब हो गए, उस्ताद जी सोए हुए हैं, ख्वाब में आका मदनी इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार होता है। मेरे नबी फरमाते हैं आए बायजीद के उस्ताद उठो, बायजीद को खुशखबरी सुनाओ, उसकी तरबियत पूरी हो चुकी, अल्लाह ने उसकी माओं के सदक़े तुफैल में उसको वली कामिल बना दिया है और उसकी गोदी में वापस कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उस्ताद जी उठे,
बायजीद के कमरे में गए तो क्या देखा, वो 22 साल नौजवान तहज्जुद के वक्त रो रहा है, आंखें भिगो रहा है और दुआ मांग रहा है और कह रहा है, आए मेरे करीम अल्लाह, आए गफूर रहीम अल्लाह, हाँ 17 साल हो गए बूढ़ी माँ का चेहरा नहीं देखा, अल्लाह बहुत याद आती है अम्मी जान की, पता नहीं बुढ़ापे में उसका क्या हालात हो, अल्लाह जो दिल करता है बूढ़ी माँ का चेहरा देख लूं, अल्लाह कभी तुझसे गिला नहीं किया लेकिन आज तुझसे दुआ करता हूँ कोई ऐसा असबाब पैदा फरमा दे कि बूढ़ी माँ के चेहरे का दीदार हो जाए। पीछे से बायजीद के उस्ताद आए, कंधों को पकड़कर उठाया और कहा, बायजीद उठो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, अब जाओ तुम अपनी अम्मा के पास जा सकते हो। बायजीद भागा भागा गया, उस दिन भी गया था रात का अंधेरा था, आज भी गया है रात का अंधेरा है, उस दिन गया था दरवाजे बंद थे, आज दरवाजे बंद नहीं है बल्कि आज दरवाजे खुले हुए हैं। अब बूढ़ी माँ बाहें फैलाए हुए इस्तकबाल में खड़ी हुई है। बायजीद को जैसे बूढ़ी माँ ने देखा, अपने सर से यूं पूरे तौर पर अपनी बूढ़ी आंखों से देखा, कहा मेरा लाल आ गया, मेरा चांद आ गया, मेरा बायजीद आ गया, अरे 17 साल के बाद मेरा लाल आया है। अरे मेरे बेटे, अभी अभी मैं सोई हुई थी, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ गए, दीदार करा गए, खुशखबरी सुना गए कि मैं तेरे बेटे को मैं वली कामिल बनाकर तेरी झोली में वापस कर रहा हूँ। आए मेरे बेटे, आए मेरे लाल, तू 17 साल तक अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे को देख नहीं पाया, तू 17 साल तक अपनी माँ के ममता से महरूम रहा है। आए मेरे बेटे, तू 17 साल तक मुझसे दूर रहा है। आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटे, आज मैं तुझे अपने हाथों से रोटियां खिलाऊंगी, अपने हाथों से चाय बनाऊंगी, आज अपने हाथों से अपने लाल को खिलाऊंगी। बेटा बाजार चला जा, घर में सामान नहीं है। मौरिखीन ने लिखा सवाने हयात में है, सुबह का वक्त था, ताखीर आने में हो गई। बायजीद जब सामान लेके लौटा है, देखा उसके दरवाजे पर लोगों का मजमा है। किसी पूछने वाले से पूछा मजमा कैसा है, बताने वाले ने बताया, बायजीद 17 साल से तेरा इंतजार करने वाली तेरी बूढ़ी माँ तुझे हमेशा के लिए छोड़कर अल्लाह के पास जा चुकी है। अल्लाहु अकबर। सोचो मुसलमानों, उस बायजीद पर क्या गुजरी होगी, उस बायजीद पर क्या गुजरी होगी जिसने 17 साल के बाद चंद लम्हों के लिए अपनी माँ का दीदार किया होगा। हाँ हाँ, ये माएँ बड़ी कीमती सरमाया हुआ करती हैं। नौजवानों, इन माओं की कदर करो। मेरी माँ अभी तकरीबन 1 माह कबल सख्त बीमार हो गई, बिस्तर अलालत पर पड़ी हुई, मेरी तबीयत खराब हुई, फिर मेरी वालदा की तबीयत खराब हुई। अब अल्लाह का फजल है, बेइंतहा एहसान है, शुक्र है कि मेरी माँ पैरों पर खड़ी हो गई है, नमाज भी पढ़ रही है, पूरे तौर पर खड़ी होकर के अल्लाह ने मेरी वालदा को सेहत अता फरमा दी। 80 साल की उम्र हो गई, लेकिन लेकिन मेरी वालदा की तहज्जुद नहीं छोटा करती। अभी जब मैं आ रहा था, सुबह का वक्त, तहज्जुद का वक्त था, मेरी अम्मी ने सर पर हाथ रखा, ऐसा लगता था सारी कायनात की खुशियां मेरी माँ ने मेरी झोली में डाल दी हो। और शायद मुझे मालूम हो गया था कि बंगाल वालों की मोहब्बतें मेरे हिस्से में आ जाएं।